Hello everyone. Today we are going to cover our chapter on the tales of the early people, class 6th history. In this chapter we are going to learn about who were the early peoples. In our previous video we have covered who were the early peoples. We call them as an hunter gatherer. Fine. How where they live and what they eat and how they continue their life to be lived. Right. So that was the small story which we have covered under the in our previous video, who were the early people. We call them as a hunter gatherer, right? So in this chapter we are going to learn about something more about the hunter gatherers. So let's begin with it. Okay, so making the stone tools and finding about the fire. Okay, so we got two things about the hunter gatherer. We were able to know about the two things about the hunter gatherer. The first about their stone tools and the second about their fire. Okay, so hunter gatherer used to make the tools from the stones. Okay, as we have seen in our last video, the hunter gatherer were the persons from the stone age, right? The period which we called that as an stone age. So stone age itself derived that the stone age itself derived that the period in which the stones were primarily used for the tools and everything. Fine. So, how they used to make the stone tools? The process is written in the slide, and you can see if there are two stones. अगर दो stones हैं मेरे पास, तो I will call this stone as a hammer, and this is my stone. अब मैं इस वाले stone से जो मेरा hammer stone है, मैं इससे इसके ऊपर मारूंगा, और उससे क्या होगा कि stone के pieces होंगे, और मैं pieces को फिर अच्छे से curve out करूँगा, ताकि क्या होगा कि मेरा ये जो stone है, ये proper shape में आ सके, so that I can make the weapons out of it, right? You can see in the picture there are plenty of good weapons in the picture over here, right? You can see these stones were cutted into or make pieces into the different varieties, right? So that they can be used in a good manner, right? They have made the arrows about from it, they have made the hammer, they have made the bow, they have made everything, right? So these were the things they used to break the stones from one, the hammer stone, the core stone, and make the another weapons from it. Okay, then they used to tie those stones on the bones or the woods. Means वो क्या करते थे, एक stone से दूसरे stone को तोड़ेंगे, fine, उसके pieces में break हो जाएगा, then उसको अच्छे से cut करेंगे, अच्छे सा shape लेके आएंगे, ताकि वो उनका weapon properly बन पाए. और फिर उस चीज़ को वो जब अच्छे से break हो जाएगा, then उसके बाद क्या करेंगे, आइदर अगर उनको यूज़ करना है तो वो किसी एनिमल या ह्यूमन की बोन पे, आइदर या फिर वुड्स पे, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर वुड्स के ऊपर उन्होंने बांध रखा है, ऐसे वो बोन्स के ऊपर भी देन उस स्टोन को टाई अप करके और देन उसको एज एन वेपन यूज़ करते थे. सो दीज वर द स्टोरी दैट हाउ दे यूज टू मेक दिस वेपन्स आउट ऑफ स्टोन्स. एंड वी ऑल्सो फाउंड द ट्रैक्स ऑफ फायर इन द स्टोन एज फ्रॉम द hunter gatherer. So from that we will be able to know that the hunter gatherers were familiar with the fire. Might be they use this as a source of light, means वो एज अ लाइट के सोर्स पे, मीन्स अगर अंधेरे में कहीं जाना है, लाइक हमारे पास तो आजकल अभी इन दिस स्टेज इन दिस पीरियड वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो हमको इतना कुछ फील नहीं होता, बट अर्लियर टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस टाइम पे वो कैसे करते थे, वो फायर जला के जाते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट. माइट बी वो कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते थे, करते होंगे, और माइट बी वो एनिमल्स को दूर भगाने के लिए भी फायर को यूज़ करते होंगे, बिकॉज द एनिमल्स आर स्केयर्ड ऑफ फायर. So that's why might be they will be using fire for this purpose. So these were the description, means how the tools were made out of the stones and how the finding about the fire. Okay, you can see in this beautiful picture there are certain tools we got from the stone age. These all are the stones from the stone age, and these were like might be we consider this as the weapons of the hunter gatherers. Might be this can be the weapons of the hunter gatherer for the different purposes, because you can see the variety of the shapes over here, right? You can see over here these are the small tools, right? You can see this shape, right? You can see this shape. So these all were the tools which were used in the early time, right, by the hunter gatherers. So we don't know what were the exact purpose of these stones, but we know these stones were used by the hunter gatherers for the different purposes, राइट। हमको एक्चुअल में पता नहीं है कि ये स्टोन्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे,
बट हाँ हमको इतना आइडिया हमने लगाया है इस चीज़ से कि ये सारे स्टोन्स को उस टाइम पे यूज़ करते थे, और देन उसके ऊपर हम इसकी थ्योरी बनाते हैं कि माइट भी ये वाला स्टोन इस काम में यूज़ होता होगा, ये वाला स्टोन इस काम में यूज़ होता होगा। लाइक यू कैन सी दिस स्टोन्स इन द सेंटर लाइक विद होल्स, जिसके अंदर ये 3 स्टोन्स है जिनमें होल है, तो इसमें हो सकता है माइट भी ये दिस स्टोन्स विल बी यूज फॉर द हैमर, ये हैमर के लिए यूज होते हो, राइट। सो दिस वर द स्टोन्स यूज बाय द अर्ली पीपल। Okay, so here is the small bifurcation of the period of the Stone Age, right? So over here you can see the Stone Age is divided under this 3. Fine, the Stone Age is divided under this 3: Upper Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. For the purpose of the class 6, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। क्लास 6 के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आप अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक आप इतना इस पर एम्फोसाइज दीजिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो पीरियड जहाँ से हम हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट पीरियड इज नोन एज स्टोन एज, राइट। मीन्स इस पीरियड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओवर हियर, राइट। You can see this period start from the beginning, from the transformation of the earth, means जब अर्थ एक पूरा वाइट बॉल था, मीन्स जिस टाइम पे पूरी अर्थ आइस से कवर्ड थी, उस टाइम पीरियड से हम बोलते हैं स्टोन एज स्टार्ट होता है, राइट। एंड टिल द ब्रोंज एज, मीन्स यहाँ तक, मीन्स दिस एज, ये एज कौन सा है, ब्रोंज एज, जो हम अभी आने वाले अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। दैट विल बी लाइक जो आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, माइट भी आप सबने वो मूवीज तो देखी होगी, मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो की जो स्टोरी है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रोंज एज, राइट। तो हम उस प्लेस के पहले की जितनी भी स्टोरी होगी, मीन्स मालूम है ब्रोंज एज से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो सब कुछ स्टोन एज है, और देन फिर स्टार्ट होता है ब्रोंज एज। बिकॉज ब्रोंज एज का इस स्टेज को ब्रोंज एज नाम क्यों दिया गया, बिकॉज इस टाइम पे हमको कॉपर मिल चुका था। तो देन जब हम पहले स्टोन एज में अगर हम टूल्स जो यूज़ करते थे वो स्टोन्स के यूज़ करते थे, ब्रोंज एज में हम जो टूल्स यूज़ करेंगे दैट विल बी मेड अप ऑफ द कॉपर, राइट। वो कॉपर के होंगे, दैट्स वाई हम उस एज को क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज। तो ये बहुत सिमिलर कंसेप्ट है, आपको ऐसा कोई मगअप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए। स्टोन एज में स्टोन के वेपन्स होते थे इसलिए हम उस पीरियड को बोलते थे स्टोन एज। ब्रोंज एज में ब्रोंज के वेपन्स होते थे इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज। देन जब आयरन एज आएगा, आयरन एज में दैट वेपन्स विल बी मेड अप ऑफ द आयरन, सिंपल। सो इसको ऐसे बिल्कुल इजी वे में इसको डील कीजिएगा, राइट। सो वी हैव लर्न 3 एजेस, द फर्स्ट इज स्टोन एज वेयर द हंटर गैदरर्स वेयर देयर, देन द ब्रोंज एज एंड देन द आयरन एज। सो लेट्स मूव अहेड। Okay, so the change in environment. What were the changes made in the environment? Around the 12,000 years ago, there were the major changes in the climate of the world, which shaped the relatively warm condition, and in many areas this led to the development of the grassland, and this in turn led to the increase in the number of deers and goats, sheep, cattle, that is the animal that survive on the grass. So 12,000 years पहले, मीन्स इमेजिन कर रहे हो आप कितना पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी चल रहा है 2020। अगर आप 2000 ईयर पहले भी जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, 0 पे, राइट। चलो मैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकली समझाता है। अभी जो ईयर है हमारा वो क्या है, 2020, सॉरी अभी जो ईयर है दैट इज 2020। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2000 पीछे ईयर्स जाओ, राइट, या 2020 ईयर्स पीछे जाओ, तो अगर आप 2020 ईयर्स पीछे गए तो आप कहाँ पे आ गए, 0 पे। दिस विल बी नोन एज एडी, राइट, दिस विल बी नोन एज एडी। अब हम आ गए 0 पे। अब 0 से भी 10,000 ईयर्स और पीछे जाना है आपको, राइट। अब 10,000 ईयर्स और पीछे गए आप, सो दिस विल बी नोन एज 10,000 BC। हम बात कर रहे हैं अभी 10,000 BC। 10,000 BC जब था, मीन्स आज से 12,000 ईयर्स पीछे, उस टाइम पे द अर्थ वॉज कवर्ड विद द आइस, मीन्स पूरा अर्थ जो था बहुत ठंडा था और पूरा बर्फ से ढका हुआ था। देन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मी बढ़ी, और उसकी वजह से जो आइस था वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। व्हेन द आइस स्टार्टेड टू मेल्ट, देन जो नीचे जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो गए। शेप, डियर, कैटल्स, जितने भी एनिमल्स ग्रास के ऊपर जो सर्वाइव करते हैं वो सब कुछ भी बाहर आए। देन दोज हू hunted these animals
now follow them and learn about their food habits and the breeding seasons. This is the this is likely that help the people to start thinking about the herding, rearing these animals themselves. So जो इन एनिमल्स को हंट करते हैं उनको नाउ फॉलो देम, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया तो उससे हमको क्या उनकी जो फूड हैबिट्स होती थी, उनकी जो ब्रीडिंग स्टाइल होती थी, वो सब कुछ हमको उससे हमको पता लगना स्टार्ट हो गया. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. सो एनिमल्स के साथ साथ में फिश भी वो मीन्स फॉर द लाइवलीहुड, फॉर द कंजम्पशन उनको भी टेक करना स्टार्ट किया. राइट. दे ऑल्सो स्टार्टेड द सर्वर ग्रेन्स, मीन्स वो कुछ ग्रेन्स भी उन्होंने खाना स्टार्ट किए. लाइक that can be the wheat, barley, rice grew naturally in the different parts of the subcontinents, right? So remember one thing, this is for your general knowledge. The first crop, जो पहला क्रॉप हमको सबसे पुराना क्रॉप का अगर हमको किसी का पता पड़ता है कि सबसे पुराना क्रॉप कौन सा था, तो दैट इज नॉट द व्हीट और द राइस, दैट इज बार्ले. अर्लीस्ट क्रॉप अगर इंडिया में हमको पता पड़ा है, मीन्स सबसे पुराना क्रॉप अगर हमको इंडिया में आज तक मिला है तो दैट इज बार्ले. और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमको कोई क्रॉप मिला है तो दैट इज़ राइस. वीट हम आज कंज्यूम करते हैं सबसे एक्सेस में, बट एंशिएंट टाइम में, पास्ट में वीट इतना कंज्यूम नहीं होता था. सबसे पहले जो हमको सबसे पुराना क्रॉप मिला है, मीन्स हम अगर कोई चीज़ हमको मिलती है तो हम बोलते हैं ना कि यार ये मोबाइल, अगर हमको कोई पुराना मोबाइल मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये मोबाइल मेरे को 6th में मिला था, ये मोबाइल मेरे को 8th में मिला था, या सिर्फ 10 साल पुराना फ़ोन है. तो ऐसे ही हमको ये जो बार्ले हमको इंडिया के अंदर मिली है, सबसे पुरानी बार्ले, सबसे पुराना जो क्रॉप मिला है दैट इज़ बार्ले. एंड सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर कोई क्रॉप मिला है तो दैट इज़ राइस. वीट का उस टाइम पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं था. Different kinds of the subcontinents, the men and the women, children probably collected these grains as a food and learn where they grew and where they ripened. Means इसके बारे में, इन क्रॉप्स को हमने कलेक्ट करना स्टार्ट किया. कलेक्ट करने के साथ साथ हमने इनके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करी. एंड आफ्टर स्टडी वी विल बी एबल टू नो दैट कि ये क्रॉप्स कैसे वो उगाते थे, मीन्स कैसे वो इरिगेट करते थे, कैसे वो इनको कंज्यूम करते थे और कहाँ कहाँ पे करते थे. सो दिस वॉज द स्मॉल इन्वायरमेंटल चेंज जो 10,000 BC से लेके अभी स्टोन एज के बीच में जो भी सब कुछ हुआ था उसके बारे में था. राइट. देन मूव अहेड. ओके, these are the certain paintings which are made on the rock. Okay, and what they tell us means ये कुछ पेंटिंग्स है जो एंशिएंट टाइम में हमारे हंटर गैदरर्स जो थे वो बनाया करते थे. बट अब उस टाइम पे पेपर तो होता नहीं था, ना ही पेन होता था, तो ये पेंटिंग्स कहाँ बनी होगी? ये पेंटिंग्स स्टोन्स पे बनती थी. स्टोन्स पे मीन्स जैसे अगर उस टाइम पे घर भी नहीं होते थे, उनके पास घर भी नहीं थे, तो वो कहाँ रहते थे? दे लिव्स इन द केव्स. मीन्स वो माउंटेन केव्स, जो माउंटेन्स के अंदर जो गुफा बनी होती है ना, उन्हों के अंदर रहते थे. और उन्हों के अंदर रहते थे तो देन वो वहीं रहते थे और वहीं पे अंदर ऐसी पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे. ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हमको मिली है. लाइक भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी हमको पेंटिंग मिली है. अजंता केव्स में भी मिली है, एलोरा केव्स में भी मिली है. तो दीज आर द सर्टन थिंग्स, सर्टन प्लेसेस वेयर वी फाउंड द रॉक पेंटिंग्स, एंड दीज आर द सर्टन पिक्चर्स वेयर विच वर फाउंड इन द रॉक पेंटिंग्स. So thank you everyone for watching us, and I request you to please subscribe the channel so that you will be getting the updates as soon as I post the video, and I hope you enjoyed the video. Thank you. Have a nice day.